So coming back to our today's lecture, the last article of this particular chapter that we are going to see here today is the Stark effect. Are you getting, all of you are getting my voice? सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So yesterday we have seen about the Zeeman effect. And if you within the 2 minutes, if I revise the Zeeman effect, the conclusion of that Zeeman effect, or 3 to 4 articles on the Zeeman effect, which we have seen from the last few days, I have told you, or up till now, you are familiar with the fact that to the light which emitting spectrum, such as hydrogen light, sodium light, mercury light, or any ultraviolet light which is capable of producing spectrum, is subjected to the magnetic field. Is subjected to the magnetic field. Then due to the presence of magnetic field, the spectral lines of the spectrum get splits up, यानी कि वो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाते, 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8 बन जाते. This splitting of the spectral line due to the application of magnetic field is called as what? Zeeman effect. Am I correct? Yes, sir. When the splitting is taking place and one spectral line is splitting into 2 or 3 components, when the one spectral line is splits into 2 or 3 components, then such type of splitting or such type of Zeeman effect is called as the normal Zeeman effect. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. When the splitting is taking place by the application of the magnetic field, of course very weak magnetic field, splitting is taking place, but this time suppose instead of 3 components, more than 3 components are formed. That means one spectral line is split into more than 3 components. Then such type of Zeeman effect is called as Anomalous Zeeman effect. anomalous Zeeman effect. Have you understand? Yes. Then you have seen कि कब एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है तो पलट के जो है नॉर्मल की तरफ जाता. कल हमने देखे थे क्वेश्चन बैक इफेक्ट. आई अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग. नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट, एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट एंड पास्चर बैक इफेक्ट. पास्चर बैक इफेक्ट में क्या होता बोले कि वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह के बावजूद जो 3 से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म हुए हैं, 3 से ज्यादा जो है तो स्प्लिट, 3 से ज्यादा कंपोनेंट की स्प्लिटिंग हुई है. जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी पावर, उसकी कीमत, उसकी कदर जब बढ़ाती जाती है तो रफ्ता प्रोग्रेसिवली तो हम ये देखते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन जो 6 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट, 12 कंपोनेंट में था, वो घटते 3 कंपोनेंट तक भी आकर रुक जाता है. लिहाजा हम इसे क्या कहते हैं कि when the magnetic field strength is increases progressively, the splitting, the anomalous Zeeman effect is converts into which effect? Anomalous convert का किसमें होता है? मैग्नेटिक फील्ड Zeeman effect में तब्दील होता है, और यही इफेक्ट में तब्दील होने के अमल को पास्चर बैक इफेक्ट कहते हैं. Am I correct? चलूं आगे? Yes, sir. Now, after having seen this one, the next article that we are going to see here today is the Stark effect. Stark effect कुछ नहीं है, जैसा कि हम गुज़िश्ता from the last 3 to 5 periods, we were discussing about the splitting of the spectral line. We know that the material or the substance such as mercury, sodium, hydrogen or whatever it may be, ऐसे वो तमाम मटेरियल जो रेडिएट करते, स्पेक्ट्रल लाइन रेडिएट करते या जिनका स्पेक्ट्रम मिलता, ये तमाम मटेरियल के ऊपर when the magnetic field is applied, then due to the application of the magnetic field, spectral line is splits up. Am I correct? इतना हम देख कर आए थे. This Stark effect is nothing but it is analogous to that of Zeeman effect. Stark effect भी किसके जैसा है?
स्टार इफेक्ट किसके जैसा एकसानियत रखता, किससे मुतशाबिहत रखता? एनालॉग है। एनालॉग का क्या मतलब? उसके जैसा, उसकी जैसी मुतशाबिहत रखने वाला। मतलब क्या कि स्टार इफेक्ट भी ज़ीमान इफेक्ट के जैसा है, खाली फर्क इतना है कि ज़ीमान इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो स्प्लिटिंग होती थी। यहाँ पर ये बोल रहे कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी जाए कुछ सब्सटेंसेस को, कुछ खास चुनिंदा हाइड्रोजन के जैसे सब्सटेंसेस को अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी जाए, तो हम ये देखते हैं कि लाइन की या स्पेक्ट्रम छोटे 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 लाइन यानी कि स्प्लिटिंग होती है। ये स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। नो, आप समझे नहीं इसका मतलब। पूरा आर्टिकल समझ क्या बोल रहे हैं हम। तो आपको हम आपसे ये कह रहे हैं कि नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट या ज़ीमान इफेक्ट ये मैग्नेटिक फील्ड के लगाने की वजह से स्प्लिट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होता है, ये कहलाता ज़ीमान इफेक्ट। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि स्टार इफेक्ट भी ज़ीमान इफेक्ट के जैसा है। स्टार इफेक्ट इज इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ ज़ीमान इफेक्ट। एनालॉग का क्या मतलब जी? उसके जैसा, मुतशाबिहत रखने वाला, सिमिलर। खाली का फलक इलेक्ट्रिकल एनालॉग, उसके अंदर क्या था? मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो स्प्लिटिंग हो रही थी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं मसलन हाइड्रोजन के जैसे, जिनको अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी जाए तो स्प्लिटिंग होती है, यानी छोटे 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 ऐसे। यानी कि मिसाल के तौर पर क्या होता, अगर अब हम देखें स्पेक्ट्रल लाइन की बात को, तो हम ये देखते हैं कि बस मिसाल तौर पर यहाँ अगर स्पेक्ट्रम बता रहा हूँ तो 1 2 3 ऐसे छोटे 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 छोटे, एक बड़ा, ये छोटे छोटे, यानी कि ऐसा ऐसा बारीक 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 भी जैसे छोटे छोटे, यानी कि अपन बोलते हैं ना बहुत अंदर किचमिड़ दिख रहा बोलते हैं, सच टाइप ऑफ थिंग वी आर यूजिंग। तो उसको क्या बोलने का, ये काय की वजह से होता, छोटे 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 जो बिल्कुल ऐसे निग्लिजिबल है, बल्कि ये दिखते भी नहीं। इनको देखने के वास्ते हाई रिजॉल्विंग पावर का जो है इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ता, तब जाके ऐसे छोटे छोटे दिखते, नहीं तो बड़े बड़े दिखाई देते। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे दिखना? छोटे छोटे कौन है? ये स्पेक्ट्रल लाइन है, स्प्लिटिंग हुई है छोटे छोटे लाइन की, ठीक है। और ये स्प्लिटिंग कब होती है बोलता? जब क्या लगा दिया जाता? इलेक्ट्रिकल फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते ऐसे कुछ सब्सटेंसेस को, तो वैसी सूरत में क्या होगा बोल रहा उन्हें, जब स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग होंगी, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज स्टार इफेक्ट। समझ में आ गई बात आपके? समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप में से कोई मुझे बोल सकता है कि स्टार इफेक्ट क्या है? बस इतना समझने का, एमसीक्यू क्या इतना है। अगर चाहे कि हम उसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखेंगे अगले स्लाइड में, आर्टिकल खत्म हो गया, इतना है। क्या है स्टार इफेक्ट? ज़ीमान इफेक्ट क्या था? स्प्लिटिंग होती है इसमें। हाँ, कब? When magnetic field is applied. यस। इसमें क्या हो रहा? इसमें इलेक्ट्रिक splitting फील्ड of अप्लाई हो रही है। electron. बस, यानी कि इस पे भी स्प्लिटिंग हो रही है। खाली स्टार इफेक्ट में क्या बदला? मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करें तो जो स्प्लिटिंग होती। और ये स्प्लिटिंग में अंदर ऐसा नहीं है कि 3 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट, ऐसा नहीं बोलते, बहुत कंपोनेंट मिलते। मतलब छोटे 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 छोटे, जैसे अभी मैंने उतार के बताया ना, यूं 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 लाइन, फिर ऐसा, फिर ये छोटे छोटे लाइन, फिर ऐसा। तो ऐसे कई छोटे छोटे लाइन, यानी कि कई ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन दिखती है। यानी हालांकि ज़ीमान इफेक्ट में हमने क्या स्पेसिफाई करे थे कि 3 कंपोनेंट में होती तो नॉर्मल होता था, 3 से ज्यादा कंपोनेंट में रही तो एनामालस होता था। यहाँ पे ऐसा नॉर्मल एनामालस वगैरह बात नहीं है, यानी कि यहाँ पर कंपोनेंट की तकसीम में ऐसी कोई तफरीक नहीं कर सकते कि 3 कंपोनेंट या 3 से जायद कंपोनेंट। यहाँ पर खाली इतना कह रहे हैं कि ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड to the substances which are emitting the radiation or which are emitting the spectral line, subjected to the splitting of spectral line into large many components, and this splitting of the spectral line in presence of the strong electric field is called as स्टार इफेक्ट। Stark effect. समझ में आ गया तुमको? मफहूम? अब बहुत खुला खुला। Yes, sir.
अब उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में क्या था वो देख लो। कौन सा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में स्पेक्ट्रम निकालने के वास्ते कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल करें? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के भी स्पेक्ट्रम निकलता ना, हमने देख किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज आता गया पहले चैप्टर में। Yes. पास्टन सीरीज, बामर सीरीज, पीफन सीरीज, लेमन सीरीज, किसकी थी ये? Hydrogen. हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की थी। किसकी बुनियाद पे थी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की बुनियाद पे थी, है क्या नहीं? कि भाई जब 2 से Yes. छलांग लगा के 3 पे आता, या 3 से छलांग लगा के 2 पे आता, जब 4 से लेके 1 में आता, वो हिसाब से जो तो बामर सीरीज, लेमन सीरीज वगैरह वगैरह थे कि नहीं? तो यहाँ पर भी इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व दिस वन, और इन अदर वर्ड्स यू मे से दैट इन द स्टार्क इफेक्ट the hydrogen atom which is emitting the spectral line is subjected to powerful electrical field. This is the experimental setup. No doubt this experimental setup I have taken from the net. ये अपने को कुछ उतारना नहीं है, ड्रॉ करना नहीं है, इस तरह का सेटअप है स्टार्क इफेक्ट का. This I have also taken from the net. You can also see. ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है किसका? कौन से इफेक्ट का? स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट का. क्या है इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट? Here in the experimental arrangement, hydrogen atom is taken. It is subjected to the strong or very powerful electric field. The experimental arrangement is as shown in the figure. क्या है फिगर में? The canal rays are produced in an ordinary glass discharge tube. This discharge tube is provided with the perforated cathode sheet. Discharge tube में क्या रहता? कैथोड एनोड रहते ना, तो वैसे इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब में परफोर्टेड कैथोड रे सी है. When the pressure in the tube is not very low, this discharge takes place between the anode and cathode. When the suitable potential difference is maintained, the canal rays stream through the perforation in the cathode, and from the behind the cathode narrow cylindrical bundles of luminar rays are formed. Isn't it? This is the experimental setup. यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि कैसे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर जो है तो एक परफोर्टेड जो है तो कैथोड और एनोड एक डिस्चार्ज ट्यूब है, और उसके अंदर जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाती, और स्ट्रॉन्ग फील्ड की कीमत 8000 से 10000 वोल्ट के दरमियान जब पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना बोले तो क्या जी, क्या समझते तुम इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे बोले तो क्या जी? Current है. हाँ, करंट दे रहे हो तो हो गया एक बात, लेकिन हमारे लैंग्वेज में फिजिक्स वाले किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए बोले तो एक ट्यूब लिए, एक ट्यूब के अंदर आपको मालूम है डिस्चार्ज ट्यूब में एक कैथोड रहता और एक एनोड रहता. ये कैथोड एक पॉजिटिव टर्मिनल को लगाते बैटरी के, एक जो है तो निगेटिव टर्मिनल लगाते, और ये दोनों कैथोड और एनोड के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, मतलब क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल की कीमत बहुत ज्यादा है, नेगेटिव टर्मिनल की कीमत बहुत, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जब बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए. समझ में आ रही के बात? Yes. यानी कि एनोड ये पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड ये निगेटिवली चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज ट्यूब और निगेटिव चार्ज एनोड, यानी कि दोनों मेटल्स के दरमियान पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के दरमियान अगर ज्यादा फर्क रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, या पोटेंशियल डिफरेंस कम है. हाँ, तो यहाँ पर आप फिगर में देखिए, ये आप देखिए, आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक डायग्राम के तहत बता रहे कि ये परफोर्टेड एक कैथोड है, एक एनोड है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक निगेटिवली चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन, एक कलेक्टर है और एक इमिटर है. एक जो है तो क्या करता? इलेक्ट्रॉन इमिट करता इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद, और दूसरा जो है तो दूसरा इलेक्ट्रोड क्या करता? इलेक्ट्रॉन लेता. आप सुन के आए ना, पढ़ के आए ना अभी तक, एक इमिटर और दूसरा एक्सेप्टर, लेकिन एक एनोड और एक कैथोड. हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर स्टार्क इफेक्ट में देखा जाता कि ये दो जो है तो एक ट्यूब है, उसके अंदर एक एनोड है, एक कैथोड है, दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस देके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पैदा करते, एक इलेक्ट्रॉन देता, एक इलेक्ट्रॉन लेता, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लागू करते. तो लिहाजा जब इस तरह के हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड लागू करे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लागू करे, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव के दरमियान ज्यादा बड़ा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे, तो क्या हुआ? स्पेक्ट्रम दिखा. क्या दिखा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे हाइड्रोजन को तो क्या दिखना है?
spectral line. स्पेक्ट्रम दिखना है, स्पेक्ट्रल लाइंस दिखे। अब क्या बोला कि भाई जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई तो ऑब्जर्व साइंटिस्ट स्टार्क ने क्या ऑब्जर्व किया, उसने स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया, देखा स्पेक्ट्रम कैसा दिख रहा। When the scientist Stark observed the spectrum of the hydrogen atom under such type of setup, he found that, or he observed that the lines in the spectrum emitted by the Corner rays of hydrogen were split up. उसने ये देखा कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद हाइड्रोजन एटम के द्वारा दिया जाने वाला स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो गए, स्प्लिट्स अप इनटू न्यूमरस शार्प कंपोनेंट। यानी कि इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की कीमत बढ़ाने के बाद उसने क्या देखा कि हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो गए, Split. हो गया। और वो भी कितने कंपोनेंट में, रीमान इफेक्ट के जैसा 2 3 4 नहीं, बल्कि स्प्लिट इनटू न्यूमरस शार्प कंपोनेंट। न्यूमरस बोले तो बहुत ज्यादा छोटे 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 ऐसे शार्प एकदम। समझ में आया क्या? यानी कैसा दिख रहा बोला मैं स्पेक्ट्रम, आपको अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। या अगर ऐसा स्पेक्ट्रम हम देखना चाहें तो ये ऐसा बड़ा, फिर ऐसा, ये सब क्या है, ये छोटे छोटे, ये क्या है, सब छोटे छोटे Spectral line. लाइंस ही है, लेकिन बहुत छोटे, लिहाजा एक के कितने बने, छोटे छोटे बहुत सारे बने। और ये स्प्लिटिंग इनटू द न्यूमरस शार्प कंपोनेंट और देन द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड, कौन देखा बाबा ये पहले फर्स्ट टाइम? Stark. इस वास्ते इसके इफेक्ट का नाम ही क्या दे दिया गया, स्टार्क इफेक्ट। Stark effect. चलिए अब और एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में देखें तो जैसा ज़ीमान इफेक्ट को दो तरीकों से पैटर्न देखते थे। स्पेक्ट्रम देखने के वास्ते कितने तरीके इस्तेमाल करे थे, कितने व्यूज, एंगल ऑफ व्यूज कितने थे ज़ीमान इफेक्ट देखते वक्त? दो। कौन कौन से? एक था लॉन्जिट्यूडिनल, दूसरा था और ट्रांसवर्स। ये लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स किस बुनियाद पे तकसीम की है कि लगाए हुए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप देख रहे तो ये देखने का व्यू जो है तो लॉन्जिट्यूडिनल व्यू कहलाता। समझ में आ रही क्या बात? और लगाए हुए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से अगर देख रहे तो देखने का व्यू क्या कहलाता था, ट्रांसवर्स व्यू। बराबर है? Yes. यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि इन ऑर्डर टू सी द स्पेक्ट्रम इन द स्टार्क इफेक्ट देयर आर द टू व्यूज, देयर आर द टू व्यूज, longitudinal as well as Transverse. तो रिजल्ट्स obtained with the lines of, अब यहाँ पर जो दिखते हैं वो बामर सीरीज वगैरह इसमें दिखे ये, the results obtained with the lines of Balmer series of hydrogen spectrum are given here. Every line is split, हर लाइन क्या हो रही बोल रहा, every line is split up into the number of components, number of components। और कैसे कंपोनेंट के सेंटर में एक ओरिजिनल लाइन और उसके बाद वो फिर छोटे छोटे छोटे, फिर इधर छोटे छोटे, फिर एक बड़ी लाइन, फिर छोटे छोटे। यानी कि एक स्प्लिटिंग की, एक लाइन की, एक फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की अगर आप स्प्लिटिंग देखना चाहे तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन सेंटर में रहेंगी और उसके दोनों बाजू समझो इधर दो तो इधर भी दो। मतलब कैसी तकसीम बराबर, यानी सिमेट्री रहेगी। ओरिजिनल लाइन के दाएं बाजू 2 या 3 और बाएं बाजू भी 2 या 3। यानी कि all hydrogen lines form symmetrical pattern. Symmetrical pattern means patterns in markedly on the quantum number n of the terms involved, and number of lines and total width of the pattern increases with n, and the number of component of the H beta line is greater than H alpha line. यानी H alpha line किसको बोलते थे, बोले याद आता क्या आपको? H alpha line, H beta line पढ़ के आए ना अपन ने पहली वाली। जब n is equals to 1 रहा तो n अल्फा, जब n is equals to 2 रहा, यानी कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता वैसे वैसे लाइन को हमने क्या नाम दिए, H अल्फा लाइन, H बीटा लाइन। याद आता क्या आपको? Yes, sir. जैसे जैसे जो है तो नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा वैसे
वैसे वैसे कंपोनेंट की तकसीम बढ़ रही। ये इसको अगर आपने दो तरीकों से देखे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमने देखे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कौन सा व्यू, लगाई हुई इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमारा देखने का व्यू परपेंडिकुलर, तो उस वक्त कौन सा व्यू बोलते हैं हम उसको, ट्रांसवर्स व्यू। ट्रांसवर्स व्यू। तो ट्रांसवर्स व्यू से जब अगर अब हम देखेंगे पैटर्न को या स्पेक्ट्रम को, तो वी फाउंड दैट द कंपोनेंट आर पोलराइज्ड। पोलराइज मतलब सेंटर में एक ओरिजिनल, इधर पूरे पॉजिटिव वाले, इधर पूरे नेगेटिव वाले, यानी पोलराइज। when observation perpendicular to the direction of electric field यानी कि ट्रांसवर्स, show the components are polarized, some parallel to the direction of the field and some are perpendicular to it। उसी तरह अगर लगाई भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की कीमत अगर 7 से 10⁻7 वेबर पर मीटर रहेंगी, तो रिजोल्यूशन इज इंक्रीजेस इन द प्रोपोर्शन टू द फील्ड स्ट्रेंथ, isn't it? And we have seen a linear or first order Stark effect, isn't it? तो such type of Stark effect can be seen। समझ में आ रही बात आपके, क्या कहना चाह रहे हैं हम कि स्टार्क इफेक्ट में क्या होता, कि स्टार्क इफेक्ट में जो है मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद स्पेक्ट्रल लाइन जो है तो तकसीम हो जाती है छोटे 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 पार्ट में, और यही तकसीम जो है तो क्या कहलाती, किसने देखी थी फर्स्ट टाइम ये तकसीम, दिस फर्स्ट टाइम इट वाज स्टार्क। therefore this effect is called as the Stark effect। so with this one, this chapter and this article is over। all the articles present in this particular chapters we have completed। ठीक है, मदिया, फरीशा, तबस्सुम, अफशान, all of you please। यस सर। Yes, sir.